Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 28th September 2020. So let us see which are the important articles in today's newspaper. So for mains purpose and for prelims purpose, these are the articles. Now let us try to understand them and take input for our examination. So first article on page number 6, editorial page. Yes, the context of the article here it is let's say the writer, we can say that Dushyant Dave, the senior advocate in the Supreme Court of India and is the president of Supreme Court Bar Association. So yes, views expressed are personal, but yes, we can say that we need to know about the criticism of higher judiciary, especially the article is discussing about Supreme Court and various cases in, we can say, past 4 to 5 years. ठीक है, तो देखते हैं कि क्रिटिसिज्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट का किस एंगल से, दैट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एबल टू फुलफिल इट्स रोल दैट इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक रोल दैट इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल. ओके, और वो कैसे, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस का उन्होंने एग्जाम्पल दे के एनालिसिस किया है, सपोर्टिंग केसेस का एग्जाम्पल दिया है एनालिसिस में. ठीक है, तो वो हमारे लिए एग्जाम के लिए GS2 पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फाइन. So there can be question because in recent times हमने देखा था जैसे in advocate प्रशांत भूषण केस, criminal contempt of court case, there also we had seen some criticism of Supreme Court. So yes, थोड़ा सा background में जाके बहुत सारे cases के example यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, so yes, a very good statement. Supreme Court judgment itself in PK Ghosh versus JK Rajput 1995. It is saying that the credibility in the functioning of justice delivery system and the reasonable perception of the affected parties are relevant considerations to ensure the continuance of public confidence in the credibility and impartiality of the judiciary. This is necessary not only for doing justice but also for ensuring that justice is seen to be done. तो क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? दो चीज़ें. क्रेडिबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, तो ये क्रेडिबिलिटी जो है फर्स्ट, एंड सेकंड रीजनेबल परसेप्शन ऑफ अफेक्टेड पार्टीज. ठीक है, तो ये परसेप्शन जो होता है अफेक्टेड पार्टीज का, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, नॉट ओनली फॉर डूइंग जस्टिस बट ऑल्सो फॉर एंश्योरिंग दैट जस्टिस इज टू बी सीन टू बी डन. ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट होता है, जब हम बोलते हैं ना कि प्रोसीजरल जस्टिस की बात हम जो बोलते हैं यहाँ पे, सीन टू बी डन मतलब क्या है, दैट फेयर प्रोसीजर्स आर फॉलोड व्हाइल डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. ओके, सो इसके आर्ग्यूमेंट्स अभी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि कैसे फेल हो रहा है जुडिशरी यहाँ पर. Fine. So justice, analysis with the help of various cases, with the court upholding Chief Justice as master of roster in debatable judgment in 2018. Chief Justices have used their powers to constitute benches and allocate cases in such benches in a highly selective manner. Now this is, we can say, argument. ये argument है. ठीक है, कि सेलेक्टिव मैनर में उन्होंने चीफ जस्टिस ने यूज़ किया है ये पावर जो है मास्टर ऑफ द रोस्टर. मास्टर ऑफ द रोस्टर मतलब क्या है कि कौन से केसेस कौन से बेंच के, मतलब कौन वो बेंच का हेड होगा, कौन बेंच उस केस को डील करेगा, दैट इज़ डिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर ये 2018 में उन्होंने फिर से वो अपहेल्ड किया है केस में एक, कि चीफ जस्टिस इज मास्टर ऑफ द रोस्टर, एंड मेनी केसेस this has been used, the power has been used in a selective manner, and this defeats the fundamental principle of rule of law. Now this is the argument, and उसके सपोर्ट में काफ़ी केसेस दिए गए, like there is no doubt that chief justice must be administrative head but he must exercise his powers in fair and just manner. ठीक है, अगेन आर्गुमेंट, ही मस्ट नॉट कंस्टिट्यूट बेंचेस एंड allocate cases to those benches in a manner which tilts the balance in the favor of executive. ऐसे अभी रिसेंट केसेस में काफ़ी देखा जा रहा है,
like decisions in some of the most important matters affecting the nation, constitution, democracy and the people and their fundamental rights have been taken in favor of executive, such as Ayodhya case, Rafale case, Birla Sahara case, order for NIA probe into Hadia case. ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है that these cases and the verdict or the let's say judgments in the cases is somehow tilted in favor of executive. On the other hand, the court refuses to decide the challenge to electoral bonds which has been, let's say, in debate. Removal of Article 370, again it is a debatable decision of executive. Habeas corpus cases among the others. Okay, so this is not being heard in an urgent manner by the court. फॉर्मर अगर और यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि कैसे ये मतलब एक फेयर एंड जस्ट मैनर में यूज नहीं किया है. फॉर एग्जांपल, फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर कालिखो पुल्स सुसाइड नोट विच अदरवाइज इज एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस carried serious allegations against two senior most judges of Supreme Court. Now Pul's wife requested for inquiry which Chief Justice J.S. Kehar, जो earlier Chief Justice थे, and his colleagues stopped. Okay, so contrast to this with Supreme Court ordering an investigation by CBI into suicide of actor Sushant Singh Rajput where no suicide note was found. जहाँ पे सुसाइड नोट मिलता है वहाँ पे किसी तरीके की इंक्वायरी नहीं होती है, और जहाँ पे मतलब जहाँ पे सुसाइड नोट मिलता है वहाँ पे किसी भी तरीके की इंक्वायरी नहीं होती है, और जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है. At the same time, the same court declined order any inquiry into the demise of Judge B.S. Loya, thereby failing to reassure the subordinate judiciary that it stands with it. तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल केस था B.S. लोया का मर्डर जो हुआ था, तो वहाँ पे एक्चुअली किसी भी तरीके की इंक्वायरी नहीं हुई थी. ठीक है. Chief Justice Deepak Mishra presided over Constitution Bench hearing matters related to medical college scam. ये भी काफ़ी डिबेटेबल था, जहाँ पे conflict of interest वाला केस था. ठीक है. So here some accusations were against Deepak Mishra himself in the case, and he was presiding over that case. तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. नेक्स्ट केस एग्जांपल दिया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्ज अगेंस्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई. द एंटायर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर हाई हैंडेडनेस इन द केस. द कंप्लेनेंट लेटर विड्रू हर कंप्लेंट. हमने देखा है ये भी केस कि काफ़ी यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ था कि फेयर एंड जस्ट मैनर में प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर इन जुडिशरी हैज़ फेल्ड to ensure fair and just procedural justice, where we can say that justice is not only to be done, rather it should also be seen as to be done. ठीक है. तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि जुडिशरी, स्पेशली हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इट्स फंडामेंटल रोल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. ये फंडामेंटल रोल हम बोलेंगे कि प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल, जो मेन रोल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, फंडामेंटल रोल जो है. ठीक है. तो वो फेल हो चुका है, हम बोल सकते कहीं ना कहीं. फाइन. सो डू यू एग्री, जस्टिफाई योर व्यू. तो इसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट्स के लिए ये सारे आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे. ओके. सो इन दिस वे यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम दिस आर्टिकल. वेरी गुड. वी कैन से एग्जाम्पल्स फॉर क्रिटिसिज्म पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Fine. Yes. Next article on page number 7, the benefits of carbon tax. ठीक है. तो benefits of carbon tax, the article is discussing it with respect to, let's say, how to reduce the use of, let's say, conventional energy, जो बोलते हैं ना हम कि कार्बन इंटेंसिव जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. ठीक है. सो बिकॉज let's say it is leading to global warming or climate change, so how to reduce the impact on the environment. तो वो वहाँ पे एग्जांपल दिए गए उन्होंने कि कार्बन टैक्स ये यूज़ होना चाहिए, प्राइसिंग द कार्बन, सो एज टू रिड्यूस
the use of, let's say, carbon intensive economic activities. So with China, the largest carbon dioxide emitter, announcing that it would balance out its carbon emission with the measures to offset them before 2060. Now this announcement was done in UNGA जो सेशन हुआ था 75th एनिवर्सरी का, अभी वहाँ पे चाइना के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला है. The spotlight is now on US and India, the countries that rank second and third. ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है that China is the highest emitter, second largest is USA and third largest is India. But as a, let's say, block of countries, the third largest will be EU, ठीक है, European Union, ये भी आपको पता होना चाहिए, and fourth will be India. Record heat waves in Delhi, floods in southwest China, catastrophic forest fire in California this year are indicatives of existential dangers of global warming. You can add some examples from last year also, like bushfires in Australia. That is the one of the best example. If you go back to, let's say, earlier year, you can give the example of cold waves in let's say USA, Canada and European Union or European regions, ठीक है, या Siberian region. India ranks 5th in the Global Climate Risk Index 2020. This is the good, let's say, fact you can give to support your argument here. Global Climate Risk Index 2020, तो इंडिया 5th रैंक करता है. तो ये प्रीलिम्स से रिलेटेड आपने इसको अलग से प्रिपेयर करना है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020. तो वो जब भी न्यूज़ में रहेगा तो हम उसको कवर कर लेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड. सो कार्बन डाइऑक्साइड, द चीफ कल्प्रिट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाज 414 parts per million in August 2020. Again, important fact when we talk about global warming related, ठीक है. तो because of past accumulation, as one half comes from the 3 top carbon emitters, यानी कि इंडिया, USA एंड चाइना, इन तीनों का मिलके आधा 50% इमिशन जो है CO2 का होता है. दे नीड टू ड्राइव डीकार्बनाइजेशन. तो उन्होंने इनिशिएटिव लेना चाहिए डीकार्बनाइजेशन का. तो चाइना ऐसे कर रहा है, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यूएस और इंडिया के. व्हाट इंडिया इज डूइंग, और इंडिया इज कमिटेड थ्रू दिस INDCs, ठीक है. INDC जो है पेरिस एग्रीमेंट में हमने दिया था 2015 में, जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था. फाइन. सो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसको बोलते हैं हम INDCs. So in that we had committed, India has committed 40% of electricity capacity being from non-fossil fuels by 2030, and second was lowering the ratio of emissions to GDP by 1/3 of 2005 levels, and third was related to, let's say, forestation measures, afforestation measures. ठीक है, तो हम कार्बन का जो है लेवल कम करेंगे थ्रू अफॉरेस्टेशन मेजर्स, ऐसा तीसरा हमने बोला था. The smart approach to achieve this will be, let's say, through carbon pricing. So one way to price the carbon is through emission trading. So we may come across this term. जैसे emission trading पहले भी होता था, हमने UNFCCC के अंडर क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसमें ये emission trading का कंसेप्ट शुरुआत हुआ था. क्योटो प्रोटोकॉल 1997. Okay, so in that Kyoto Protocol we had this emission trading concept started as, let's say, carbon tax, we can say that, setting a maximum amount of allowable influence from the industries and permitting those with low emissions to sell their extra space. यानी कि जो एक्स्ट्रा वो बचा रहे कार्बन, वो इमिट नहीं कर रहे, उसको वो यूज कर सकते हैं टू सेल दैट पार्ट टू अदर कंपनीज, उसको इमिशन ट्रेडिंग कहा जाता है. फाइन. Another way is to put the carbon tax on economic activities. तो ये तो हम जानते भी है, कार्बन टैक्स जैसे कोल के ऊपर कार्बन टैक्स होता है, ठीक है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एज डन इन कनाडा एंड स्वीडन. तो इंडिया में भी एक्चुअली कोल के ऊपर कार्बन टैक्स होता है, हम जानते हैं वो, राइट. सो दिस इज द वे Canada and Sweden is also doing. Like Canada has imposed the carbon tax of $20 per ton CO2 emissions in 2019. Now eventually they are going to let's say increase to $50 per ton. So in conclusion, we can say that India is among the nations that are hardest hit by climate impacts, and this is the reality. India ranks 5th in the Global Climate Risk Index 2020.
There is growing public support for climate action. Yes, we know that, that is good thing, and the government is also having right intent, we can say that, to let's say move in this direction, but we need solutions that are seen to be in the India's interests. ठीक है, तो India's interest क्या है? To balance out the economic growth with environment protection. तो इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी डिमांड्स, एनर्जी सिक्योरिटी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और वी कैन से इंडियाज इंटरेस्ट that should be fulfilled, along with we can say that all these things. Fine. Yes, so in this way आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन GS 3 में आ सकता है, या फिर आप कार्बन टैक्स की बात एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर ऐसे आता है तो एज अ वे फॉरवर्ड यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ज़रूर लिखनी चाहिए. फाइन. यस, yes, some important developments in international, let's say, aspects. Yes, clashes erupt between Armenia and Azerbaijan. तो आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए. बैकग्राउंड क्या है कि नागोर्नो काराबाख broke away from Azerbaijan in a conflict that broke out in the Soviet Union collapsed in 1991. तो नागोर्नो काराबाख जो रीजन है अभी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है. नाउ यू कैन सी दिस ऑरेंज टेरिटरी जो है नागोर्नो काराबाख रीजन. ठीक है, ऑरेंज यहाँ पे दिखाई देगा आपको, मार्क किया हुआ. ठीक है, सो राइट नाउ दिस इज, लेट्स से इंटरनेशनली दिस इज एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान. इंटरनेशनली वो कोई इंडिपेंडेंट रीजन या कंट्री नहीं मानी जाती है, रिकॉग्नाइज नहीं होता है. दिस इज द डी ज्योर पार्ट ऑफ अजरबैजान एट प्रेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे इसके कंट्रोल के ऊपर आर्मेनिया और अजरबैजान, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आर्मेनिया अजरबैजान, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट रहता है. ठीक है, तो इन कंट्रीज को कॉकेशियस कंट्रीज भी बोलते हैं, कॉकेशियस रीजन भी बोला जाता है इन दोनों कंट्रीज को. ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो ये कंट्रीज के लोकेशन आप देखिए, यहाँ पे ब्लैक सी है. ठीक है, तो ये जॉर्जिया है यहाँ पर, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा अजरबैजान. ठीक है, और ये ग्रेटर कॉकेशियस माउंटेन्स है, and these are the lesser Caucasus mountains. So conflict region is in lesser Caucasus mountains या southern Caucasus बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ये आर्मेनिया रीजन है और ये डिस्प्यूटेड रीजन है, हम दिखाई देगा यहाँ पे. ठीक है, साउदर्न या लेसर कॉकेशियस माउंटेन्स का. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अजरबैजान बॉर्डर्स विथ कैस्पियन सी. ओके, एंड दिस आर्मेनिया इज लैंडलॉक. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, किसी भी तरीके से. एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द आर्मेनिया, दैट इज क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री, एंड अजरबैजान विच इज लेट्स से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री. ठीक है, तो clashes erupted between Armenia and Azerbaijan on Sunday over volatile Nagorno-Karabakh region. तो यही तो हम अभी बोल रहे थे कि ये रीजन आपको अभी दिखाई देगा यहाँ पर. ठीक है, नागोर्नो काराबाख रीजन, दिस इज दैट रीजन जो ऑरेंज में मार्क किया गया है. फाइन. रीइग्नाइटिंग कंसर्न्स अबाउट इंस्टेबिलिटी इन द साउथ कॉकेशियस रीजन जो है उसको. कॉरिडोर फॉर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस टू वर्ल्ड मार्केट्स. तो ये जो कैस्पियन सी रीजन जो है, यहाँ से जो पाइपलाइंस जाती है इस रीजन से जाती है. ठीक है, और यहाँ से आएंगे तो ये यूरोपियन रीजन को कनेक्ट करेगा बाकी सारा. ठीक है, तो ये पाइपलाइंस मेनली दे गो थ्रू दिस रीजन. नाउ दीज टू कंट्रीज हैज फॉट वॉर इन 1990s. जब ये यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ तो नागोर्नो काराबाख जो रीजन है, ठीक है, इट वॉज लेट्स से डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट और वी कैन से ऑटोनॉमस. तो उन्होंने खुद का सेपरेट क्या बोलते हैं हम, ऑटोनॉमस कंट्रोल हो गया था. बट वी कैन से दैट बोथ कंट्रीज आर फाइटिंग टू हैव कंट्रोल ओवर दिस रीजन. ठीक है, तो ये देखा जाए तो अजरबैजान का रीजन है, बट दिस येलो और ऑरेंज रीजन इज आर्मेनियन ऑक्यूपाइड नागोर्नो काराबाख रीजन. ठीक है, तो टोटल जो रीजन है ना वो ये है. ठीक है,
अब ये जो मरून कलर दिखाई दे रहा है या आपको ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, दैट इज अजरबैजानी टेरिटरी अंडर आर्मेनियन मिलिट्री कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, और ये नागार्नो काराबाख ऑटोनॉमस रीजन है, इसमें बीच में ऑटोनॉमस मतलब दे आर लेट्स से इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड। ठीक है, यहाँ पे किसी का मिलिट्री कंट्रोल नहीं है, बट मिलिट्री कंट्रोल जो है आर्मेनियन का वो बाहर से है। ठीक है, और अजरबैजान इज कंटिन्यूसली फाइटिंग फॉर इट्स ओन टेरिटरी। एट द सेम टाइम लुक एट दिस, नाखचिवान ऑटोनॉमस रिपब्लिक, दिस इज द लेट्स से ऑटोनॉमस रीजन ऑफ अजरबैजान। दिखाई दे रहा है ये येलो और ये येलो, तो बीच में ये आर्मेनिया का पार्ट है और ये ऑटोनॉमस रीजन है अलग से, नाखचिवान। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, नागार्नो काराबाख रीजन एंड नाखचिवान ऑटोनॉमस रिपब्लिक, अजरबैजान का जो रीजन है। सो व्हेनेवर दीज लेट्स से रीजन्स आर इन न्यूज और लेट्स से इन क्वेश्चन, you have to understand they are related to Armenia and Azerbaijan dispute. Fine? Yes. So pipelines shipping Caspian oil and natural gas from Azerbaijan to the world pass close to this Nagorno-Karabakh region, and that's why the conflict is very much important for all countries including Russia also. So Russia has let's say called both countries to for the immediate ceasefire. उन्होंने बोला है कि डिप्लोमेटिकली वो सॉल्व होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। फाइन। सो फॉर आवर एग्जामिनेशन मैपिंग जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड वो पता होना चाहिए। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सी से कौन सी कंट्रीज जो है वो कनेक्टेड है, तो आपको पता होना चाहिए जॉर्जिया है या फिर टर्की। इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है टर्की इज कनेक्टेड, जॉर्जिया इज कनेक्टेड इन कॉकेशियस रीजन। ठीक है, कॉकेशियस माउंटेन्स रीजन में ये कनेक्टेड। बेसिकली कॉकेशियस माउंटेन्स कनेक्ट टू फ्रॉम ब्लैक सी टू कैस्पियन सी, यहाँ पे दिखाई देगा आपको डायरेक्टली ऐसे। ठीक है, ये पैसेज जो है, और इनमें ये कंट्रीज है जॉर्जिया, फिर ऊपर रशिया है, और फिर ये अजरबैजान, और यहाँ पे आर्मेनिया एंड देन टर्की, और उसके नीचे जो है ईरान है। ठीक है, अजरबैजान के नीचे। फाइन, ओके। सो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादातर प्रीलिम्स में, ऐसे मैच द फॉलोइंग या फिर रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ऐसे प्लेसेस का अभी 2018 में भी और 19 में 17 में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यहाँ पे दिखाई देगा आपको नागार्नो काराबाख रीजन, that is the let's say conflict or dispute among which of the following countries। तो आपको exactly पता होना चाहिए अजरबैजान और आर्मेनिया। आंसर इज बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया जापान नेवीज मैच स्किल्स इन नॉर्दर्न अरेबियन सी। यस, देयर इज military exercise, we can say that among the navies of two countries, GMEX। so Japan India या India Japan let's say maritime exercise जिसको बोला जाता है GMEX 2020। so this is the 4th edition of biennial India Japan naval exercise underway in the North Arabian Sea। the Navy said GMEX series is the exercise commenced in जनवरी 2012। तो 2012 से बाईएनियल यानी कि हर 2 साल में ये एक्सरसाइज होती है। 2018 में ये एक्सरसाइज हुई थी विशाखापट्टनम में लास्ट टाइम। ठीक है, अक्टूबर 2018 में लास्ट एडिशन था। फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। ये रिसेंटली हमने देखा था न्यूज़ में, द हिंदू एनालिसिस में ये भी हमने कवर किया हुआ है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट इन इंडिया एंड जापान नेवीज। फाइन। द मैरीटाइम कोऑपरेशन हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बिटवीन टू साइड्स एंड द फोकस ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, एंड इंडो पैसिफिक। So GMEX will showcase high degree of interoperability and jointly operated skill through conduct of multitude of advanced exercises and operations। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम जो है विशाखापट्टनम में हुआ था। इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी हैज़ डिप्लॉयड इंडिजिनियस स्टेल्थ डेस्ट्रॉयड INS चेन्नई, स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारकश एंड फ्लीट टैंकर दीपक। फाइन। So other military exercises between India and Japan, Dharma Guardian, that is let's say joint land military exercise,
Then a joint Air Force exercise Shinyu Maitri, and we can say that the trilateral maritime exercise between USA, India and Japan, that is Malabar exercises. ये तो हम न्यूज़ में देखते हैं हमेशा. फाइन, यस. तो इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. जिमेक्स सॉरी, ठीक है. एंड वी कैन से लास्टली एनवायरमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ है. इनविजिबल किलर थ्रेटन्स कंट्रीज सैंडलवुड फॉरेस्ट. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, SSD. ठीक है, तो क्या है ये SSD? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में. ये पूरा उसको अंदर से हम बोल सकते हैं कि डेथ हो जाती है, और किसी भी तरीके के आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, लीव्स एंड ऑल. ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है SSD. एंड दिस इज इन्फेक्शियस डिसीज. एक प्लांट को हो गया तो वो सारे फॉरेस्ट में अदर प्लांट्स को स्प्रेड होता है. ठीक है, तो वो कैसे स्प्रेड होता है? द इन्फेक्शन हैज रिसर्फेस्ड इन द एरोमेटिक ट्रीज नेचुरल हैबिटेट्स इन कर्नाटका एंड केरला. तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेचुरल हैबिटेट है उनका. देर इज नो क्योर एज ऑफ नाउ फॉर SSD. There is no option but to cut down and remove the infected trees to prevent the spread of the disease caused by phytoplasma, the bacterial parasites of plant tissues which are transmitted by insect vectors. ठीक है, तो इंसेक्ट वेक्टर्स, इंसेक्ट्स जो है इसके ऊपर से दूसरे प्लांट के ऊपर जाते हैं, बट उन इंसेक्ट्स के अंदर ये प्लांट टिश्यूज होते हैं, फाइटोप्लाज्मा जो होता है. फाइन. With let's say between 1 to 5% of sandalwood trees lost every year due to the disease. Scientists warn that it could wipe out let's say entire natural population if measures are not taken to prevent the spread. तो ये बहुत पहले फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था कोडागुड इन 1899. यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि कैसे बिफोर इंडिपेंडेंस एफर्ट्स किए गए थे. इन 1909 the Maharaja of Mysuru announced the reward of 10,000 rupees for anyone finding the remedy. So from that time the disease has been from time to time spreading, especially in Kerala and Karnataka, and let's say wiping out the forest, sandalwood forests in India. ठीक है, तो ये resurface हुआ है अभी फिर से disease जो है. So yes, the forest administration and their officials have task here to let's say control this disease in this forest area, so that जो man made forest होता है सैंडलवुड का, ठीक है, एग्रीकल्चरल हम बोलते हैं कि फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री में सैंडलवुड यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे अगर ये स्प्रेड हो जाता है तो फार्मर्स को भी लॉस होना शुरू होगा. फाइन. सो यस, तो डिसीज़ का नाम है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़. सो सम इम्पोर्टेंट कैप्शंस एंड कोटेशंस. ये जो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया गया था अबाउट जस्टिस डिलीवरी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आप टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट्स, जब भी ये जैसे आपको ऐसे भी आ सकता है प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में, या फिर GS2 में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये है. एथिक्स में भी आपको जस्टिस के बारे में ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं. Fine. So yes, these were the important articles from today's The Hindu newspaper. For further information on editorial discussion classes wherein in-depth analysis of men's related articles and issues is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.